والدین نے اس کا نام وہاب بن عمر رکھا تھا۔ اس کا گھرانہ بڑا شاندار تھا اور خلیفہ وقت سے اس کی رشتہ داری بنتی تھی، لیکن اس میں خامی یہ تھی کہ وہ اہل بیت کا دیوانہ تھا۔ وہ خلافت اہل بیت کا حق سمجھتا تھا۔ اس کی اپنی رائے تھی۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ پھر بعد میں امام موسیٰ کاظم جو ان کے بیٹے تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوا۔ وہاب بن عمر کو 2 ساتھیوں سمیت قتل کی یا پھانسی کی سزا ہوئی، تو انہوں نے پیغام بھیجا جیل میں موجود امام موسیٰ کاظم کو۔ امام موسیٰ کاظم نے چٹھ پہ صرف جیم لکھ کے بھیجا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دلوں سے راہ ہوتی ہے۔ وہاب بن عمر نے اس جیم کو اپنا لیا اور اس کا مطلب لیا جنون۔ یہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ دنیا اسے بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے۔ بہلول کا جو مطلب ہے وہ ہے خوش گفتار، وہ ہے خوش طبع، پیار کرنے والا، اور واقعی یہ شخص اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتا۔ یہ اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان ایک لاٹھی گھسیٹتا ہوا بھاگتا رہتا، ویرانوں کا رخ کرتا۔ بچے اس کے ہمجولی تھے، بچوں کے ساتھ یہ کھیلتا رہتا۔ کبھی وہ اس کی چادر کھینچتے، کبھی وہ اس کا لباس کھینچتے، کبھی وہ اس کی داڑھی سے کھیلتے، اور یہ جب ویرانوں میں چلا جاتا تو بچے وہاں بھی پہنچ جاتے، اور تھوڑی دیر بعد یہ بچوں کو اپنے اپنے گھروں کی جانب جانے کو کہتا تھا۔ یہ تھا بہلول، اور یہ اس وقت کی خلافت کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی، اور موبائل اپوزیشن تھی۔ دربار سے لے کر کھنڈرات تک اس شخص نے جینا حرام کر رکھا تھا حکمرانوں کا۔ بار بار یہ پٹتا، بار بار اسے کوڑے پڑتے، لیکن یہ باز نہ آتا۔ آج کا قصہ قابل توجہ ہے۔ ایک ہوٹل والا نان بائی وہ فقیر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہا تھا اور جھڑک رہا تھا، اور وہاں پہ بہت رش لگ گیا۔ فقیر اپنا سب منہ لے کر کھڑا تھا کہ اچانک ایک طرف سے بہلول نمودار ہوئے۔ ہجوم کو کاٹتے ہوئے وہ آگے گئے جہاں پہ نان بھائی فقیر کو گالیاں دے رہا تھا۔ آپ نے سٹک زور سے زمین پر ماری۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ بہلول آ گیا ہے۔ نان بھائی اور فقیر بھی متوجہ ہو گئے۔ بہلول نے کہا، کیا قصور کیا ہے فقیر نے؟ تو نان بھائی کہتا ہے کہ میرے کھانے بن رہے تھے، رنگ برنگی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح خوشبو آتی ہے پکوانوں کی، یہ فقیر آیا اور اس فقیر نے اپنی جھولی سے یا جھولے سے روٹی نکالی، اور جو بھاپ اٹھ رہی تھی، جو ہانڈیوں سے بھاپ نکلتی ہے، سٹیم، ہلکا سا دھواں، اس کے ساتھ اس پہ پھیر پھیر کے بھاپ پہ سارے نوالے یہ پوری روٹی کھا گیا۔ اب مجھے یہ پیسے دے۔ بہلول مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس فقیر نے تم سے کھانا کھایا؟ نان بھائی کہتا ہے نہیں۔ تم سے روٹیاں لی؟ نہیں۔ تم سے سالن لیا؟ نہیں۔ صرف بھاپ میں نوالے چلا کر یہ روٹی کھا گیا۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اس کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں، تم کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ بہلول نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا۔ جب سکہ نیچے پھینکا تو کڑنگ کی آواز آئی۔ بہلول نے کہا کہ یہ آواز لو اور اپنے گلے میں ڈال دو۔ تھوڑے ہیں یہ پیسے، تھوڑے ہیں؟ ایک اور سکہ نکالا، اسی سکے کے اوپر پھینکا، پھر آواز آئی۔ نان بھائی کو کہا کہ یہ آواز لو اور اپنے گلے میں ڈال دو۔ اب سارا ہجوم وہ کہہ کے لگا رہا ہے، اور نان بھائی کے
चेहरे पे एक रंग आ रहा है और एक रंग जा रहा है कि मैं किसके हत्थे चढ़ गया हूं। बहरहाल 3-4 सिक्के बहलूल ने फेंके, आवाजें आईं और बहलूल ने कहा जिस तरह इसने भाप से रोटी खाई है उसकी अदायगी इन आवाजों की सूरत में जो तुमने सिक्कों की सुनी है, खबरदार सिक्कों को हाथ लगाया, जो तुमने आवाज सुनी है ये उस भाप का मुआवजा है और इस आवाज को अपने गले में डाल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाजी है, 7 बर आदम जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन ख़बरें रखनी है, पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल जो है वो रखनी है। एक बात आप पे वाज़े कर दूं कि हम हमेशा, अंग्रेज़ी के एक मुहावरा है बोन ऑफ कंटेंशन, जो फसाद की जड़ होती है ना उसको जो है ज़ेर बहस लाते हैं। पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का माजी क्या था, पाकिस्तान का हाल क्या है और ख़राबी कहाँ पे है। क्योंकि चीनी कहते हैं कि मछली हमेशा सर से गलना शुरू होती है, तो हम भी सर से गल रहे हैं, हम भी इस्लामाबाद से गल रहे हैं, हम भी शैतानपुरा से गल रहे हैं। वहाँ पे लानती बैठे हैं, वहाँ पे खाइन बैठे हैं, बददियानत बैठे हैं, इसलिए हमारी भी ये हालत है। इससे पहले कि बाकायदा खबरों का सिलसिला शुरू करें, आप जानते हैं किसने कहा है, और थू 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 ये भी आप जानते हैं कि ये किसने कहा है, ये आप कर दें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप स्टे करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मेरी शक्ल देखकर, मेरे बाल देखकर, अन्य वाह मेरा हुस्न देखकर। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा जो है वो मैंने कहा है नौजवानों तक पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई बात उनके दिल पर जो है वो असर कर जाए, लाजमी नौजवानों तक पहुंचाया करें। और वीडियो पूरी देखने की ये बार बार रिक्वेस्ट है अपनी बहुत प्यारी फैमिली से कि वीडियो को पूरा चलाया करें। इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है यूट्यूब को कि जी जब आप छोड़ते हैं दरमियान में तो यूट्यूब समझता है कि वीडियो फजूल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं फजूल वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता, तो आप कोशिश किया करें। सबसे पहली खबर, काउंटडाउन 28 नवंबर 2025, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री इन्होंने रिटायर होना है और नए आर्मी चीफ ने आना है। हम इनको खुले दिल से खुदा हाफिज कहेंगे, जो हुआ सो हुआ, और नए आर्मी चीफ का जो है वो हम इस्तकबाल करेंगे। अगली खबर ये है कि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये फरमाना है मुनीर अकरम साहब का। मुनीर अकरम साहब कौन है? बड़े अहम ओहदे पे हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं। हम हैरान हैं कि हमें तो पता है, हमें उस भेड़िए का भी पता है, हमें इजराइल का भी पता है, हमें उस कौम का भी पता है जो कौम मनो सलवा से जो है ना वो जिसका जी उकता गया, जन्नत के खानों से जिनका जी उकता गया, तो हम उन्हें जानते नहीं उनकी नीयत कैसी है। ये इस्लामाबाद नहीं समझ रहा, नुमाइंदा कह रहा है कि नाकाबिल एतबार हैं। हम भी यही कहते हैं, ये कहते हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। उसके बाद DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपनी खिदमत जारी रखेंगे, पहले बता चुका हूँ लेकिन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपनी जो है वो जिम्मेदारियाँ जारी रखें। अमरीका अफगानिस्तान से निकल रहा है और बड़े अहम मामलात हैं, लेकिन उस वक्त मीडिया ने कहा कि जी बाकी जर्नैल सारे काबिल हैं, सारे काम कर सकते हैं, सारे ज़बरदस्त हैं, सारे दबंग हैं। हम भी यही कहते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है जर्नैलों का कॉल पड़ गया है। अब कोई जो है ना जर्नैल वो कोई काम का या कोई दबंग या वो कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से DGISI। अब वो हालात याद रखें जब अमरीका निकल रहा था, उस वक्त फैज़ उम्मीद को बाजवा ने तब्दील कर दिया, लेकिन अब ये अपनी खिदमत जारी रखेंगे। और शमा जुनेजो आप जानते हैं हमारी मासी लगती हैं, शमा मासी, उन्होंने ट्वीट किया है कि PTI के लिए बुरी खबर है और DGISI अपनी खिदमत जारी रखेंगे। अब शमा बीबी या शमा मासी एटम बम ही रह गया या टैंक ले आए, PTI को टैंक के नीचे दे दें,
ट्रक के नीचे दे दें, और तो मेरा ख्याल है आपने कुछ नहीं छोड़ा। अगली खबर यह है कि सैलाब ज़दगान को कोई स्कीम आपने नहीं देनी, ये कहना है IMF का। और IMF कहता है खाद और ज़रूरी अद्वियात पे मज़ीद टैक्स लगाया जाए। मैं इन लानतियों से, इन पोर्न वीडियो वालों से ये पूछता हूँ कि जब ये 140% तनख्वाह बढ़ा रहे होते हैं, चीफ जस्टिस की 24 लाख पेंशन कर रहे होते हैं, हाउस रेंट बढ़ा रहे होते हैं, गाड़ियां मंगवा रहे होते हैं, मुख्यमंत्री 2 करोड़ 70 लाख के टायर, उस दिन व्यूअर पूछता है ये कौन सी कंपनी है, ये कौन से टायर हैं, तो भाई मुझे क्या पता, मैं आप जैसा आम बंदा हूं, CD70 चलाने वाला, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके सामने दुखड़ा रखता। उस वक्त IMF कुछ नहीं कहता, अब कहता है सैलाब ज़दगान को स्कीमें न दें जी। उसके बाद गजा में 21 अफराद शहीद हो गए, नया हमला हुआ है, और जो है वो इसमें जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से हमारे साथ हैं। ये जो कुछ हो रहा है मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप ने कहा है। उसके बाद हमास और इजराइल के मुज़ाकरात जो है वो शर्म शेख, ये बड़ा सियाती मकाम है, मिस्र का बड़ा मॉल थे शर्म शेख में, जहाँ पे मुज़ाकरात हुए और हमास ने मुतालबा किया है कि उनके जितने भी रहनुमा हैं वो आज़ाद किए जाएं। पेशावर जलसे में एक कमेटी बनी थी, वहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे, बदबू थी, खालें पड़ी थी, गंद था, तो उसका जिम्मेदार गन्नापुर को करार दिया गया है कि तमाम हालात के जिम्मेदार गन्नापुर थे। गन्नापुर ने किसी के कहने पे वहाँ पे जलसा रखा ताकि लोग कम आए और रोब कम बने, ये बहरहाल कमेटी कहती है। उसके बाद वफाकी हुकूमत में, अभी ये मैं IMF की बात कर रहा था, वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,000 अरब का इजाफा हो गया है। 7,000 अरब, आप लोग अरब सुनते ही नहीं आगे, ये ऐन वाला अरब नहीं है कि अरब आ गए हैं बहुत सारे सरमायाकारी करने, ये अलिफ वाला अरब है। 7,000 अरब, ये कोई अगर लिख सके कमेंट में, कोई इतना बड़ा मैथमेटिशियन हो तो वो लिख दे कि 7,000 अरब लिखते कैसे हैं, मैं तो कम से कम नहीं लिख सकता, ये इजाफा हुआ है। अगली खबर यह है कि जरदारी को फौरी तौर पे वापस बुलाया गया है UAE, क्योंकि ये बाहर ही रहते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। वो रक्षा बनाया हुआ है, ले ने एयरफोर्स 1 को, वो पकड़ता है, सलो मारता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, नवाज शरीफ कभी किधर। ये जरदारी पहले 10 दिन चीन खुआर होता रहा गलियों में, फिर UAE चला गया, अब उसे बुलवाया गया है कि वो कशीदगी काम करे। अल्सेशन और बूली आपस में बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो लड़ाई हो रही है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 45 साल इन्होंने मोतिया बनाया, ये अंदर से एक हैं ऊपर से एक हैं। असद कैसर ने कहा कि अगर मुखालिफ हैं तो हमारे साथ मिलकर जो है ना अदम एतमाद ले आएँ, ये एक हैं। और रेलिवेंट रहने के लिए कि हमारी भी बातें हों, हमारी भी बातें हों, हर वक्त PTI और इमरान खान की बातें होती हैं, हमारी भी बातें हों कि जी फलां ये भौंका है, फलां ये भौंका है, इसलिए तो जरदारी को तलब किया गया है। उसके बाद ज़बरदस्त नोबेल प्राइज़ मिला है एक जापानी और 2 अमेरिकन को। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इंसान का मुदाफ़ियाती जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दरियाफ्त किए हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये इनकलाब बर्पा करेंगे सेहत में, कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है और ख़ासकर कैंसर के खिलाफ वो बेहतर होगा। ये लोग डिज़र्व करते हैं नोबेल प्राइज़, इन लोगों को सलाम पेश करना चाहिए। और इन लोगों के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी, एक जापानी डॉक्टर हैं, 2 अमेरिकन हैं, लेकिन अब जो जहां का ठग है, जो जहां का नौसरबाज है, जो जहां का नोटंकी है, वो नोबेल प्राइज़ लेना चाहता है। उनमें ट्रंप भी शामिल है और उनमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार करके, अगवा करके कोट लखपत जेल में, और थोड़ा सा शायद सीने में ठंड पड़ी हो डायन की और हिंदा की, वो कोट लखपत जेल में जो है वो पहुंचा दिया गया है। अगवा किया गया था पेशावर कैंट से। उसके बाद सुलेमान भट्ट आप जानते होंगे, इसने अपनी माँ बेची थी, ये क्रिकेटर था, आमिर हो गया, सुलेमान भट्ट हो गया, आसिफ हो गया। इंग्लैंड में इन्होंने पैसे लिए थे, पूरी दुनिया को पता था, फिर इन पे पाबंदी लग गई और आजकल ये अपनी अकेडमी चलाता है। यहाँ इसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि PCB ने उनको बड़ा हैप्पी बर्थडे का मैसेज किया है इस लुगड़ को, जिसने अपनी माँ बेची, क्योंकि इनको ये लोग पसंद हैं, सौदे करने वाले पसंद हैं। जिस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, पसनी एयर बेस दे दो, मिनरल्स दे दो,
یہ دے دو وہ دے دو بیچ دے OLX. تو سلیمان بٹ کو PCB نے جو ہے وہ مبارکباد دیا ہے کہ تم نے زبردست کام کیا تھا, تم نے ماں بیچی تھی, ملک بیچا تھا, پوری دنیا میں بدنامی ہوئی تھی, لہٰذا تمہیں ہیپی برتھ ڈے. اور عمران خان کو ہیپی برتھ ڈے کی جو ہے وہ تکلیف نہیں کی گئی تھی. یہ ہیں جی سینیٹر مشتاق. کیا زبردست بندہ ہے. مجھے کبھی کبھی فخر ہوتا ہے کہ جو سینیٹر مشتاق ہیں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آزاد ہو گئے ہیں, وہ اردن پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی رودات سنائی ہے کہ جی ہمیں گندا پانی دیا گیا, 3 دن ہم نے بھوک ہڑتال کی, ہمیں بیڑیاں ڈالی گئیں اور اس کے بعد ہم پہ کتے چھوڑے گئے. لیکن اعلان کیا کیا انہوں نے جس سے لطف آیا, لطف یہ آیا, انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیل تک مزاحمت جاری رہے گی, مزاحمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس کو ظلم کو نہیں مانیں گے, فسطائیت کو نہیں مانیں گے, بھیڑیے کے راج کو نہیں مانیں گے, اس ناجائز اور لیجٹمیٹ جو چائلڈ ہے امریکہ کا اس کو ہم نہیں مانیں گے اور یہ مزاحمت جاری رہے گی. مزاحمت کا نام سن کر یقین کریں کہ روح تک اتر گئی تاثیر مسیحی کی, جو پروین شاکر نے کہا تھا. بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ مزاحمت والے زندہ ہیں. سینیٹر مشتاق زندہ باد اور ان کو آزادی مبارک ہو. انہوں نے کہا ہے کہ کوٹ لکھپت میں بھی جیل میں ڈالا گیا, یہ جو خدا کی خاطر معاہدہ کر رہے ہیں, ادھر اسرائیل کی جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا اور یہ ساتھ جو ہے وہ حشر ہوا. علی امین گنڈاپور یہ قضائے جرنیلاں سے نہیں رہے. اب یہ گنڈاپور نہیں ہے کیونکہ صنم جاوید کو پشاور کینٹ سے اٹھایا گیا, پشاور کے دل سے اٹھایا گیا, پولیس والے دیکھ رہے تھے. اب میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی PTI کے لوگ وہاں پہ جو ہے پناہ لیے ہوئے ہیں, جس طرح مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ میں جو ان کے ساتھ حشر کیا تھا, قاضی شرے درمیان میں گرنٹر بنا تھا, پھر قاضی شرے نے جو ہے وہ گرفتار کروایا تھا. تو جو بھی لیڈر وہاں پہ ہیں وہ گنڈاپور کو قاضی شرے سمجھیں اور فوراً وہاں سے نکلیں. کسی اور جگہ چھپ سکتے ہیں تو چھپیں, ورنہ گنڈاپور جو ہے وہ قضائے جرنیلاں سے وہ نہیں رہے اور اب گنڈاپور کو کوئی نہیں جانتا. گنڈاپور زندگی میں انشاءاللہ کونسلر بھی نہیں بن سکے گا. جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ان کے اپنے مشیر ہیں بریگیڈیئر عباسی, مصدق عباسی, ان کو صبح FIA کی ٹیم گرفتار کرنے کے لیے پشاور روانہ ہو گئی ہے. اب مصدق عباسی کیوں؟ وہ خود بریگیڈیئر ہیں. اس لیے کہ تیمور افضل جھگڑا کے ساتھ مل کر انہوں نے تیمور افضل جھگڑا کی جو سیٹ تھی وہ کھول دی, حلقہ کھول دیا اور ثابت ہو گیا کہ فارم 45 پہ تیمور افضل جھگڑا جیتے ہوئے ہیں. تیمور افضل جھگڑا کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا عمران خان نے, پھر گنڈاپور اور یہ ساری کمپنی مل گئی, تیمور افضل جھگڑا کو ہروا دیا گیا. انہیں پتہ تھا کہ عمران اس کو وزیر اعلیٰ بنوائیں گے. کافی میرے ویورز کو نہیں پتہ ہوگا, تیمور افضل جھگڑا جو ہے ہاٹ فیوریٹ تھے اس کے لیے, کیونکہ ماہر معیشت بھی ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے. تو انہوں نے کھلوائے فارم 45. تو اب بریگیڈیئر مصدق عباسی کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم پہنچ گئی ہے اور وہ ٹیم ظاہر ہے گرفتار کرے گی. گنڈاپور میں نے کہا ہے قضائے جرنیلاں سے نہیں رہے. اب وہ گنڈاپور نہیں ہے, وہ اپنی مونچھوں کے ساتھ ٹریکٹر کھینچ سکتے ہیں, وہ اپنے بالوں کے ساتھ 100 کلو کی گندم کی بوری اٹھا سکتے ہیں, لیکن جو ان کا سیاسی قد کاٹ تھا, علیمہ خان نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی کہہ سکتا ہے عاصم لو آ جاؤ, جو کہہ سکتا ہے. وہاں پہ جو لوگ موجود تھے علیمہ خان نے کہا کہ کوئی کہہ سکتا ہے, ہر کوئی چپ کر گیا کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے, ہم تو صرف چوری کھا سکتے ہیں, ہم تو صرف سینیٹر بن سکتے ہیں, ہم تو صرف MNA بن سکتے ہیں, ہم تو صرف جو ہے وہ MP بن سکتے ہیں. اور کتنا شاندار گھرانہ ہے شوکت خانم کا. ان بہنوں کی کوئی ویڈیو نہیں ہے. اگر ان 4 بہنوں کی کوئی ویڈیو ہوتی, 70 سال کی ہو گئی ہیں, تو یقین کریں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کر ڈالنا تھا. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ماں
माँ के बराबर है, बहन के बराबर है, बेटी के बराबर है, नहीं, उनके अपने मकासद हैं, वो वीडियो आउट कर देती। बहरहाल गंडापुर कज़ाए जर्नैलन से अब नहीं रहे, उनको पीटीआई का न समझा जाए, और जो भी वहाँ पनाह लेगा कादी शुर्रे की तरह, कभी आपको कादी शुर्रे का पूरा किस्सा सुनाऊंगा कि इसने मुस्लिम बिन नकील के साथ क्या किया था, मुझे आपने याद करवाया तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। बहरहाल उसके बाद आते हैं 26वीं तरमीम का केस लग गया है और उस आईनी बेंच के सामने लग गया है जो 26वीं तरमीम के नतीजे में वजूद में आया, जिनको आसाइशें मिली, जिनको मौजें मिली, जिनको मुराद मिली, वो सुनेगा। मैंने गुनाह किया है, मैं वकील हूंगा, मैं जज हूंगा, मैं दलाइल दूंगा, मैं फैसले करूंगा। होता है किसी बस्ती में ये। बहरहाल वो लग गया। 26वीं तरमीम हो रही थी तो एक एमएनए कहते हैं कि मुझे जो है ना वो शुगर थी, मुझे बार बार छोटा पेशाब आता, यानी आपको पता है सूसू, क्योंकि शुगर वालों को पता होगा, तो मैं उन्हें कहता कि जी मुझे सूसू, वो कह देते नहीं, जर्नैल कहते नहीं सूसू डाक के रख। जब मैं बिल्कुल मजबूर हो गया, मेरी पैंट फटने वाली हो गई, तो मैंने कहा मैं मरना। उन्होंने मुझे बहरहाल वो ले गए और मुझे कहा कि अंदर से कुंडी नहीं लगानी। इस हालत में 26वीं तरमीम हुई थी, वो तरमीम लगी है अमीनुद्दीन के सामने, यानी वो बंदा कमोड से निकल जाता या छत फाड़ के, कुंडी नहीं लगानी। अभी शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि दरवाजा खोल के रखो। एक किताब में लिखा हुआ है कि भुट्टो साहब जब तशद्दुद कर रहे थे ना, भुट्टो साहब जब वॉशरूम में जाते थे तो बाहर एक बंदा खड़ा रहता था, सामने साबिक वजीर आजम, जितने भी इख्तलाफ हों, साबिक वजीर आजम उससे कहते थे शाबा करो, रफ़े हाजत करो, बंदा सामने खड़ा है वर्दी में, और भुट्टो को कहते थे करो, ये वो लोग हैं। बहरहाल जी वहाँ पे जो है उसे अंदर से कुंडी नहीं लगानी। इस तरह 26वीं तरमीम हुई, इमरान खान का इस तरह बंदोबस्त किया गया। अब वो 26वीं तरमीम वो लग रही है अमीनुद्दीन के सामने, मंदोखेल के सामने, और जब बराह रास्त दिखाने की बात हुई तो मंदोखेल कहता है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हम तो क्लर्क भर्ती होने के लायक नहीं हैं, हम तो किसी वकील के मुंशी नहीं लग सकते, हम तो बायर स्टाम नहीं लिख सकते, और हम सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं, हम एक्सपोज हो जाएंगे। मंदोखेल साहब आप कितने और एक्सपोज होएंगे? आप अपनी मरी हुई मां को छोड़ आए, आपने लोगों का पुरसा नहीं लिया, आपको इधर से व्हाट्सएप गया कि पहुंचो फौजी अदालतों का फैसला करना है, आप अपनी मां को छोड़ आए, इस उम्र में आप अपनी मां को छोड़ आए और आप इधर आ गए इनका हुक्म मानने। बहरहाल एक दिन यानी खोटियां थी सुन तद खरियां, पीर मेर अली शाह ने कहा था एक दिन 8 फुट ज़मीन के नीचे, फिर मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आप बुलाएं किसी को मदद के लिए, कोई आपकी मदद करे। बहरहाल जी ये उसके सामने लग गया है। जो एहलियाँ हैं जो है ना वो सेंटर मुश्ताक की, वो कहती हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये आर्मी चीफ की जागीर है कि हम उनका नाम न लें। और फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि वो हाफिज़ कुरान है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, ज़बरदस्त बात है। वो कहती हैं कि क्या वो नहीं जानते कि यहूद और नसारा ये आपस में तो एक हैं, ट्रंप और नेतन्याहू ये आपस में तो एक हैं, ये बिल्कुल शीरो शक्कर हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यानी बहुत ज्यादा आयात का जिक्र करते हैं ना जनरल साहब, जहां भी जाते हैं तो वहां पे आयात का जिक्र करते हैं। यानी आप जो है ना अगर ये आयत आती है तो इस आयत को दरमियान से जो है वो काट देते हैं या इसके ऊपर से स्किप कर देते हैं। ये कहना है सेंटर मुश्ताक की एहलिया का, बहुत दबंग खातून, कोई उन्होंने रोना पीटना नहीं डाला, कोई उन्होंने शिकवा नहीं किया, कोई उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने ये शिकायत की कि ये किसी की जागीर नहीं है, हमारा मुकदमा क्या है, हमारा इस्तगासा क्या है, खुदा के सामने हमारी फरियाद क्या है कि ये 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर ये किसका मुल्क है। या आइन में बादशाहत करार दी जाए कि जो आर्मी चीफ होगा वो बादशाह होगा, वो उम्वी खलीफा होगा, उसके सामने रुकू की हालत में आपने कॉर्निश बजा लानी है, आपने माथे पे हाथ रख के सलाम करने, ये आइन में करार दिया जाए। हम भी मोहम्मद बिन सुलेमान बादशाह नहीं है, कोई हिल भी नहीं सकता, मोहम्मद बिन जैद बादशाह नहीं है।
फिर जब आप सरकारी मुलाजिम हो, आप लोगों के टैक्सों से पैसे लें, आप लोगों के टैक्सों से बने हुए बंगले में रहें या कोठी में रहें, वहाँ से आप मरात लें, फिर उन्हीं को कहें कि जी वो हमारे सामने आप झुक जाएं। आप इज्तिमाई जो दानिश है 8 फरवरी 2024 की तरह कि जी हमेशा जो शूरा है लोगों की मशवरे से, लोगों की राय से, लोगों की मुशावरत से जो भी फैसले होंगे। अभी आपने बांग्लादेश में देखा किस तरह उस डायन को भगाया गया, आपने नेपाल में देखा नेपो किड्स, अकरबा परवरी, यहाँ पे क्या चल रहा है। कोई कह रहा है कि अभी पता नहीं मुख्यमंत्री वजीर आजम बनेगी या वो जो बिलो रानी है वो वजीर आजम बनेगा। क्यों? यानी माएँ जो दूसरी माँ हैं उन्होंने बच्चे जन्ना बंद कर दिए हैं, या उनका सिर्फ एक स्टिग्मा है, या उनके माथे पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो गरीब हैं या वो मिडिल क्लास के हैं। आप लोग क्यों सनम जावेद और फलक जावेद लोगों को निशाना है इबरत बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि तुम होते कौन हो हमारे खिलाफ बोलने वाले, तुम होते कौन हो हमारे खिलाफ खड़े होने वाले, तुम होते कौन हो हमारी बादशाहत को चैलेंज करने वाले। यहाँ पे दो खानदान है, मखसूस तबका है, 60 जो है इलेक्टेबल्स हैं जिनका ना दीन है, ना ईमान है, ना माँ है, ना बाप है, ना नड़ी है, ना डट्टा है। वो इशारे पे इधर, जिस तरह वो बाप पार्टी है, काफ लीग है, MKUM है, जिनका कोई आगा पेछा नहीं है, वो हमारे कहने पे चलते हैं। तो सवाल तो ठीक की है, जो मुश्ताक साहब की एहलियां हैं, ज़ाहिर है मुश्ताक साहब की एहलियां हैं, तो फिर उसी तरफ बोलेंगी कि या तो हमें बता दिया जाए कि ये मुल्क जो है ये किसी पटवारी को बुलाएं, पटवारी वैसे भी नून लीग के अपने होते हैं, और आप स्टाम्प पे इसका इंतकाल करा दें, या जो फ़र्द होता है तो वो फ़र्द मेरे ज़िम्मेदार भाई समझ रहे होंगे कि वो फ़र्द आप जो है ना वो जर्नैलों के नाम करवा दें, थोड़ा थोड़ा बांट दें कि ये 7-8 जेड़े जर्नैल हैं ये पाकिस्तान इनके दरमियान में हमने बांट दिया है, अब इनके सामने जो है ना वो कोई ना बोले। मैंने आपको बताया कि 4 इमामों में से या इमाम मालिक थे या इमाम अहमद बिन हम्बल थे, उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्तर पे खड़े होकर, कब्र मुबारक पे खड़े होकर कहा था कि इस साहिबे कब्र के अलावा किसी से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। इख्तलाफ क्यों नहीं किया जा सकता? उसका जवाब डांगा, सोटे, इगवा, घर तोड़ना, वजन लटकाना, उल्टा लटका देना, सुराखों में मिर्चें देना, उसका ये इख्तलाफ का ये जवाब है? ये जागीर है किसी की। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।